हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज प्लस टू में हम आगे चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। इसमें हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम 2026 ऑन 9 मार्च 2026 क्लास प्लस टू CBSE बोर्ड एग्जाम। ओके, नाउ on this session today, this is the 28th lecture। 28वां लेक्चर है, 27 हो चुके हैं। अब आज 6 तारीख हो गई है, आपको 7, 8, 9 को पेपर है आपका। तो अब ये 10 चैप्टर आज लास्ट हो गया। अब 11 एंड 12 2 चैप्टर और रह गए, उनको भी हम शॉर्टकट बता देंगे। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें आपका चैप्टर 10 में वेक्टर अलजेब्रा है। वेक्टर अलजेब्रा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, CBSE बोर्ड एग्जाम 2026 मैथमेटिक्स 041 कोड। वेक्टर अलजेब्रा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। पहले तो यह है वेक्टर अलजेब्रा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। यू नो विच क्वांटिटी only having the magnitude not direction, that is only scalar quantity, and which quantity having magnitude as well as direction, then that quantity is called the vector quantity। okay, जैसे आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपका चाहे ईस्ट से वेस्ट देख रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट माप रहे हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, वो डिस्टेंस मैग्नीट्यूड है, खाली लेंथ। अगर कहीं पर हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, कि कितने डायरेक्शन में किस साइड गए, फिर उससे कितनी साइड गए, तो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो मैनी क्वांटिटी यू नो, नो नीड टू एक्सप्लेन हियर नाउ। Here only dot product and cross product and then some properties and some most important question we have to discuss. Now dot product, if any vector A horizontal line x axis पर acting कर रहा है OX के along, and vector B at the angle theta in positive direction means anti-clockwise, this is the OP. P is the point at the inclined angle theta। okay, so then dot product, first of all dot product, dot means scalar product। तो scalar product dot product हमारी क्या होगी, A वेक्टर dot product B वेक्टर is equal to magnitude of A vector into magnitude of B vector into cos theta। This is our dot product. It is scalar. Result is scalar. This is scalar. This dot product also is scalar. Any real number we can say. Okay, clear? Now, if angle theta 0 degree, what will be? इसी लाइन पर है तो डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो cos 0 होती है 1, तो मैक्सिमम होगा ये, मैक्सिमम वैल्यू इफ थीटा 0, इफ थीटा इक्वल टू 0, तो देन ये मैग्नीट्यूड A इज A इंटू B, A इंटू B, A डॉट B, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, स्केलर आ जाएगी। अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई का मतलब हो गया कि हमें अलजेब्रा हो गया। अलजेब्रा क्या है? अगर कोई ए वेक्टर हमारा, ए वेक्टर A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K, if this is vector in 3D, 3 dimensions, I, J, K, you know unit vector along x axis, y axis, z axis, then it is vector, any general vector A. What is the point in the 3D? Which vector this? A1, A2, A3. This is the point, x, y, z, you know। And if A vector this, if B vector
B vector is B1I plus B2J, okay, plus B3K, okay. This, then is dot product of these two, what will be? Algebraic product, vector algebra, okay beta, vector algebra, dot product, each turn to each turn. तो I with I with J, I with K, तो ध्यान दे इसमें जब ये है I डॉट I 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड I इंटू मैग्नीट्यूड I, बिकॉज cos 0 इज दिस कंडीशन, थीटा 0 डिग्री है I to I, तो देन इट इज 1 into 1, it is equal to 1. I dot I is equal to 1. I dot, if 90 degree, theta 90 degree, if theta equal to 90 degree, then A dot B is equal to 0, because cos 90 0, because cos 90 0, then A dot B multiply algebraic A1I into B1I, I into I 1, तो ठीक है, तो A1 B1 into 1, तो A1 B1 हो गया. अब A1 I into B2J 0, because I dot J 90 degree, I dot J 0, I dot J equal to 0, ठीक है. I dot K is equal to 0, 90 degree angle, okay. These, now then 0 plus 0 plus, अब A2J plus B1I 0 plus A2J into B2J, तो A2B2 into 1, ठीक है, plus 0 and plus A3K I 0 plus A3K B2J 0 plus A3 B3 K into K1, this. So A dot B formula बन गया, A dot B is equal to A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. This will be the dot product of two vector. Okay, clear? सिंपल टू वेक्टर, जब कोई एंगल नहीं है, एंगल है तो ये आपको होगा मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B इंटू cos थीटा, विदाउट एंगल जनरल. ओके, इफ मैग्नीट्यूड कैसे निकले? मैग्नीट्यूड A फॉर्मूला स्क्वायर रूट कंपोनेंट A1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 square, square root. This is the magnitude formula. Okay, x component, y component and z component. Okay, now ith, jth, kth, these are the unit vector along x axis, y axis, and scalar component of the vector a1, a2, a3. Okay, and vector component a1i, A2J, A3K, ये वेक्टर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये कंपोनेंट बन गए. ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर अलजेब्रा, डॉट प्रोडक्ट, डन. नाउ आफ्टर दैट 90 डिग्री थीटा, इफ 0 डिग्री देन आई टोल्ड, तो I dot I is equal to 1, J dot J is equal to 1, K dot K equal to 1, but I dot J, I dot K, J dot K, then 90 degree angle, then 0. Perpendicular है तो 0. If two vectors are perpendicular, then dot product equal to 0. So condition, if we have to prove that any two vectors are perpendicular, so we have to prove the dot product is equal to 0. Done.
After that, now I will tell you most important questions forward. Okay? Yes, beta. Next question. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी? ये वेक्टर प्रोडक्ट है और इसमें रिजल्ट इसका जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट बना उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, वो क्या आएगी? वेक्टर आएगी। और डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है, उनकी मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट प्रोडक्ट जो है वो स्केलर होता है, हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट मींस आउटपुट आल्सो वेक्टर। So now what is the definition? You know very well, it is the right-handed rule. Right-handed rule. Okay? ठीक है, अगर हम इसको रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो हमारा वर्क ऊपर की ओर को होता है आउटपुट। अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो आउटपुट डाउनवर्ड होगा। तो यहां पर ये वेक्टर है आउटपुट, इसलिए ध्यान रखना है कि तीन जो भी दो वेक्टर हैं उन वेक्टर को एक किसी प्लेन में होंगे तो उसके थर्ड जो रिजल्ट होगा वो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आएगा। अंडरस्टैंड दिस। जैसे कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, let us suppose these are at angle theta, these are at angle theta, these both in one plane, in one plane, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट विल बी इन द थर्ड प्लेन, सॉरी इन द सेकंड प्लेन, इन सेकंड प्लेन, एंड दैट प्लेन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस। जिसे बोर्ड है आपका, बोर्ड का ये प्लेन है, इस प्लेन पर दो वेक्टर हैं तो रिजल्ट इसके परपेंडिकुलर आएगा, ऐसे परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब ये वाल है, इसके परपेंडिकुलर दूसरी वाल होगी उधर साइड की, तो परपेंडिकुलर टू दिस विल बी द आउटपुट। अब ये परपेंडिकुलर है तो कैसे होगा इसका? जो हमने एग्जांपल दिया था उससे, या पहले ये देखिए आप क्या बनता है इसका। ए क्रॉस बी आउटपुट जो है परपेंडिकुलर है, इसलिए ए बी साइन थीटा होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस बी वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट बी कॉस थीटा। एक बी वेक्टर का कंपोनेंट स्केलर, बी वेक्टर का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर। तो दैट्स व्हाई एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, लेट एन यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर वेक्टर, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो स्केलर हो गए, इंटू एन यूनिट वेक्टर इंटू साइन थीटा, एन साइन थीटा। अब ये परपेंडिकुलर होगा, इसलिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा साइन थीटा होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोस थीटा होता है, तो दैट्स व्हाई साइन थीटा। इतना आपको ध्यान रखें। तो ये डेफिनेशन है। अब इसके अकॉर्डिंग जो एग्जांपल हमने दी थी उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर आप ये कहें A1 B1 C1, तो ये डिटर्मिनेंट से कैलकुलेट होगा। किससे कैलकुलेट होगा? विदाउट एंगल डिटर्मिनेंट से। I J K, ये तीनों यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब इनके कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर स्केलर कंपोनेंट A1 A2 A3, जो मैंने एग्जांपल लिया A1I प्लस A2J प्लस A3K लेट वेक्टर A एंड वेक्टर B लेट B1I प्लस B2J प्लस B3K। देन स्केलर कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर B1 B2 B3। So this output of this is cross product. This will be vector, okay, and perpendicular to this plane where A and B vector are present. So then what will be this if we expand this? We know I into along column and row cancel A to B3, A to B3 cross product ऐसे, and subtract this product B to A3 minus
B2 A3. Understand this. This you know, determinant expand, you know, cofactor multiply the any row element, any row और any कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड कर सकते हैं, वी नो. तो आई एंड प्लस, अब जे नेगेटिव बनेगा तो इसलिए मैं उसको जे को माइनस जे लिखकर या अंदर चेंज कर दूंगा, मैं को फैक्टर में ले लूंगा, उसको को फैक्टर में चेंज कर देंगे. अलोंग रो एंड कॉलम कैंसिल, A1 B3 की जगह मैं पहले ये ले लूंगा B1 A3, B1 A3, B1 A3 माइनस A1 B3 माइनस A1 B3, this and plus into J plus along K into that, तो along K column and row cancel, तो A1 B2 A1 B2 minus A1 B2 minus B1 A2 into K, this unit vector. So this is the output and unit vector this, okay. I J K की फॉर्म में है. देन स्केलर जो भी आएंगे इसका ये परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा टू दैट प्लेन वेयर बोथ वेक्टर ए एंड बी. डेफिनेशन याद रखनी है. तो कहीं भी टू वेक्टर हैं उनके परपेंडिकुलर वेक्टर का हमें दोनों के निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे. दिस इज द परपेंडिकुलर वेक्टर टू द बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ओके, नाउ क्वेश्चन इंपोर्टेंट. ओके, अब इसमें एक बात और है, अगर ये जीरो आ जाए, इफ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, जीरो कब आएगा? ध्यान दे, एंगल 0 डिग्री होगा, साइन 0, ई 0, यहां 0 डिग्री पर जीरो आएगा तो वो क्या बनेगा? कोई एंगल नहीं होगा, सिर्फ पैरेलल वेक्टर हो गया. ये कैसे वेक्टर होंगे? पैरेलल वेक्टर. इफ कंडीशन, if cross product of two vector, if cross product of two vector is equal to 0, this implies both vector are parallel vector, vector A parallel vector B. ये कंडीशन ध्यान रखनी है आपको. ओके बेटा, दिस कंडीशन रिमेंबर, if cross product equal to 0 then both vector parallel. सिंपल. अब मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया वेक्टर का, जनरल थिंग बता रहे हैं आपको, ठीक है, बाकी आप करेंगे. ओके, प्रोजेक्शन भी बता देते हैं ऑफ ए वेक्टर टू द अदर वेक्टर एंड फिर आपको क्वेश्चंस देंगे. ओके, इंपॉर्टेंट. प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द अदर वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए JCTION, projection of A on B, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A on B. अब A वेक्टर अगर यहां है, इसका प्रोजेक्शन इस पर B वेक्टर पर कर रहे हैं, दिस वेक्टर A वेक्टर B, दिस एंगल थीटा इंक्लाइंड पर है. तो प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ दिस इज इक्वल टू, एक का यूनिट वेक्टर ले लेते हैं. ओके, प्रोजेक्शन
हॉरिजेंटल, तो ए का प्रोजेक्शन ए cos थीटा एंड बी का यूनिट वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यूनिट वेक्टर बन गया आई इंटू कॉस थीटा। This is the projection of A on B. Understand? A cos थीटा हॉरिजेंटल आ जाता है और हॉरिजेंटल जो B है उसका यूनिट वेक्टर ले लिया, और यूनिट वेक्टर क्या होता है B वेक्टर का? B डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B, यूनिट वेक्टर। एंड यूनिट वेक्टर, एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एन वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ vector n. This formula important, unit vector of a vector. Okay, understand, magnitude, unit vector, dot product, cross product and projection of vector A on vector B. These things I want to tell you. Done. Now questions. Okay, yes, clear? Yes beta, one important question for this year, for the board exam, 100% for the board exam. Find a unit vector perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b, where a equal to 3i plus 2j plus 2k and b equal to I plus 2j minus 2k. तो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो और वो यूनिट वेक्टर भी हो, ऐसा हमें वेक्टर फाइंड करना है। तो किन्हीं दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट हम जानते हैं, सो वी हैव टू यूज द क्रॉस प्रोडक्ट, अभी बताया मैंने, ठीक है। तो एक, दिस इज रॉन्ग, फर्स्ट a plus b calculate sum of both, that will be one vector, component of a plus b we have to take here, then a plus b is sum of both, I with I, 3 plus 1 4i, a plus b 4i, 2j plus 2j तो plus 4j, algebraic sum, plus 2k minus 2k 0, finish, and a minus b, a minus b vector, subtract b from a, तो 3 minus 1 2, scalar component algebraic sum, and minus this, तो 2j minus 2j 0, finish, and 2k minus minus plus 2k means plus 4k. Understand this? So here a Cartesian b not, here we have to find a plus b cross product with vector a minus vector b. This we have to calculate. So now component of a plus b, 4 and 0, 4 and 0, a plus b के, a माइनस b के स्केलर कंपोनेंट, i का 2, j का 0, k का 4, i2, ओके, एंड j का 0 and k 4. Now we have to find, okay,
Now here what will come? I along J and K, along I row and column cancel. 4 4 जा 16 minus 0. तो 16 minus 0 I. तो 16I. Okay. Now J K along column and row cancel. 4 4 जा 16 minus 2 into 0 0. तो minus 16 J. Okay. Now K along column and row cancel. 4 into 0 0 and 2 4 जा 8 minus 8. 0 minus 8 minus 8K. This now required perpendicular vector, unit vector perpendicular to each A plus B, perpendicular to each A plus B and A minus B. हमारे पास A प्लस बी A माइनस बी यहां हमने कैलकुलेट किए है, ठीक है। इन्हीं के स्केलर यूज हो गए, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट बन गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन what required unit vector perpendicular to each will be equal to this vector by the definition and magnitude of this. So this vector 16I minus 16J minus 8K divided by magnitude of this. Magnitude, this means square root of magnitude. Understand? So magnitude this 16 16 ja 256. 16 16 ja 256 plus minus 16 का स्क्वायर 256 plus minus 8 square 64 then this will be equal, अंदर 64 कॉमन है, 8 कॉमन है अंदर। तो अब देखिए इसमें ये हो गया 16 8 8 2 जा 16 16 इंटू 16 16 इंटू 16 8 इंटू 8 तो 8 इंटू 8 और यहाँ पर 8 इंटू 8 और यहाँ पर 16 इंटू 16 तो 8 इंटू 8 यहाँ भी है 8 इंटू 8 यहाँ भी है, कॉमन ले लो, ठीक है। 8 ऊपर कॉमन ले लो तो क्या बनेगा 8 2 जा 16 2i सिंपलेस्ट फॉर्म लेंगे माइनस 8 2 जा 16 माइनस 8 1 जा 8 माइनस k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट में अंदर कॉमन आएगा 8 8 जा 64 कॉमन, ओके। हाँ यहां पर बचेगा 4 64 4 जा 256 4 4 जा 16 कैरी 1 4 6 जा 24 1 25 4 प्लस 1 हमने 64 कॉमन और बाहर निकाल दिया, वो 8 हो जाएगा बाहर, 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 8 डिवाइड बाय ये भी 8
और यहां पर अंदर बचेगा रूट 4 + 4 8 1 9 √9 और ऊपर 8 इंटू 2i माइनस 2j माइनस k. This now required unit vector 8 8 cancel, then 2i minus 2j minus k divided by 3 √9 3. This answer. This is unit vector. Understand? And it is perpendicular to each. Each means a plus b, result of sum of both, and a minus b, different. Very important question. Okay? Now, next question. Very important question. फाइंड लैम्डा एंड म्यू. कोई भी स्केलर कंपोनेंट है, दो इसमें एक वेक्टर में हो, इसमें हो, ये लैम्डा एंड म्यू एनी स्केलर क्वांटिटी पी क्यू दे सकते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी एम एन कुछ भी होगा. इनकी वैल्यू फाइंड इफ 2i + 6j + 27k क्रॉस प्रोडक्ट i + लैम्डा j + म्यू k = 0 वेक्टर. अब जब क्रॉस प्रोडक्ट है 0 तो क्रॉस प्रोडक्ट का सॉल्यूशन हमें पता है क्या, किन्हीं दो वेक्टर की डिटर्मिनेंट है ना, i j k. क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीका मेथड, स्केलर कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर 2, j का कंपोनेंट 6, k का कंपोनेंट 27 एंड सेकेंड वेक्टर में i का कंपोनेंट 1, j का कंपोनेंट लैम्डा एंड k का कंपोनेंट म्यू. क्रॉस प्रोडक्ट दिस इज गिवन इज इक्वल टू 0 वेक्टर गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ये गिवन क्रॉस प्रोडक्ट, तो दिस 0 गिवन. अंडरस्टैंड? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन. ठीक है बेटा. अब ये क्रॉस प्रोडक्ट ये हो गई, तो इसको सॉल्व किया हमने. क्या हुआ सॉल्व करके? i के लॉन्ग कॉलम एंड रो कैंसिल 6 म्यू i इंटू 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा lambda. This I. ओके बेटा. आफ्टर दैट j प्लस, अब वो माइनस मैंने को फैक्टर का साइन क्रॉस प्रोडक्ट का रिवर्स कर दूंगा मैं. j के लॉन्ग कॉलम एंड रो कैंसिल 2 इंटू म्यू ना लेकर 27 इंटू 1 पहले ले लूंगा. 27 1 27 माइनस 2 इंटू म्यू. ठीक है, जे कैंसिल हो गया 2 म्यू. दिस कोफैक्टर इंटू जे. ओके, प्लस कोफैक्टर ऑफ के दिस क्रॉस प्रोडक्ट कैंसिल रो एंड कॉलम, तो 2 लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू 6 6. दिस इनकी क्रॉस डॉट प्रोडक्ट ये बन गई आपकी इज इक्वल टू 0 वेक्टर. अब 0 वेक्टर का मतलब 0i + 0j + 0k. तो कंपेयर
आई विद आई, टू वेक्टर इक्वल हो गए, परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया, जीरो वेक्टर है तो रिजल्ट आ गया। तो दिस आई कंपोनेंट यहाँ जीरो, तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, 6 म्यू minus 27 lambda must be equal to 0. Zero vector means this implies 0 I plus 0 j, जीरो वेक्टर का मतलब प्लस 0 k, जीरो वेक्टर का मीनिंग दिस। तो कंपेयरिंग आई विद आई, जे विद जे, बिकॉज इक्वल वेक्टर हो गए हैं, so comparing to I this and second j 27 minus 2 mu, it must be 0, and third 2 lambda k component 2 lambda minus 6 must be equal to 0. तो यहां से लैम्डा क्या बनता है, लैम्डा इज इक्वल टू 6/2 3। अब लैम्डा 3 बनता है, यहां से म्यू क्या बनता है, म्यू इज इक्वल टू, म्यू उधर गया पॉजिटिव, डिवाइड बाय 2, 27 डिवाइड बाय 2, ये म्यू बनता है, ये सेटिस्फाई करेगा इसको, पुट करो, ठीक है। तो 6 इंटू म्यू 27/2, म्यू की वैल्यू पुट करी, माइनस लैम्डा पुट किया 27 लैम्डा इंटू 3, ये पुट किया, सॉल्व किया, मस्ट बी 0, तो देन 2 3 जा, तो 327 माइनस दिस 0, ट्रू। ये ट्रू हो गया इसके लिए, तो मीन्स फाइनल आंसर, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। तो लैम्डा is equal to 3 and mu is equal to 27/2. Answer. These are our answers. Very important and easy question of 2 marks. Okay? Done. Hello. Next question. Very important question. Question 3. Find the area of the triangle with vertices A 1 1 2, B 2 3 5, C 1 5 5. Coordinate of the vertices of a triangle given. Find the area of this triangle by the vector method. Okay? Other method भी है coordinate geometry, but not that. We have to use vector method. क्या? अब वेक्टर मेथड में क्या है इसका फॉर्मूला, ट्रायंगल का दो वेक्टर बना लो, ए बी वेक्टर, एक तो ए बी वेक्टर बना लो, ठीक है। पहले ए बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो 2 माइनस 1 1 आई प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए बी, पोजीशन वेक्टर बी माइनस ए, 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 प्लस 2j डायरेक्ट, वी नो वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, वेक्टर ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, बाय द ट्रायंगल लॉ। तो देन 2i माइनस 1i, 3j माइनस 1j, 5k माइनस 2k, तो 5 माइनस 2 3k, ये आपका ए बी वेक्टर बन गया।
अब आपको ए सी वेक्टर डेफिनेशन निकलेगी। फिर ए सी वेक्टर इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ए सी वेक्टर पोजिशन वेक्टर ऑफ सी पॉइंट माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, 1 minus 1 0 I finish, 5 minus 1 4 plus 4G, 5 minus 2 3 plus 3K, AC वेक्टर पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। डन, डायरेक्ट मैंने कर दिया। तो फॉर्मूला वी नो दिस, यूज डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal half magnitude of the cross product of these two vector, AB vector cross product with AC vector, magnitude of this. So now solve this determinant. So this implies half into determinant of this I J K cross product of AB vector and AC vector. So scalar component 1 2 3 1 2 3, scalar component 0 4 3 0 4 3, determinant this and magnitude after that. So this half determinant solve किया I into cross product column and row cancel, 2 3 जा 6 4 3 जा 12, 6 minus 12 तो minus 6 I J cross column and row cancel, 1 3 जा 3 3 minus 0 3 तो minus 3, ठीक है, minus 3 cofactor minus 3 then J, okay, then cofactor of K column row cancel, 1 4 जा 4 minus 0 यानी 4 तो plus 4K. This is the expandation of the determinant this. अब इसका magnitude of this area, so required area triangle ABC equal half into magnitude of this square root 6 6 जा 36 minus 6 square 36 plus minus 3 whole square 9 3 3 जा and 4 square 16. सॉल्व किया 36 and 16, 6 6 12 and 9, 1/2 6 6 12 plus 9 21, 2 carry 2 1 3 and 3 6, root 61. So this is required area. Answer, this is your area, square unit we can say, okay, unit not there coordinate system में, तो स्क्वायर यूनिट कह सकते हैं, एरिया है स्क्वायर यूनिट, this root 61/2. Done, clear? Okay, now most important question, one more. Yes beta, most important question this also. See here, what is question? MCQ.
ये एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शन गिवन, एनी वन ऑप्शन इज करेक्ट, 1 मार्क। लेट ए बी आर यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दैम। यूनिट वेक्टर है दोनों, उनके एंगल बिटवीन दैम आपका क्या है, तो थीटा है। तो हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, ए डॉट बी, टू एंगल, टू वेक्टर्स and both are unit vector here saying, तो then formula when unit vector है दोनों, तो magnitude of A1 होगा, magnitude B भी 1 होगा। ये हम डेफिनेशन लगाएंगे पहले, A डॉट B is equal to AB cos थीटा। ओके, देन थीटा एंगल हमें फाइंड करना है, तो पहले ये देखिए आप क्या बना यहाँ से, ए डॉट बी हमारी ये बन गई, तो कोस थीटा ये बन गया ए डॉट बी, ठीक है। अब ए डॉट बी हमारी क्या बनेगी, ये हमें नहीं पता अभी, ये एक तो ये फॉर्मूला होगा। दूसरा हमारा क्या हो गया, ए प्लस बी आल्सो यूनिट वेक्टर, सम आल्सो यूनिट वेक्टर कह रहे हैं, तो इसका होल स्क्वायर अगर हम करें, अंडरस्टैंड होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी से होल स्क्वायर क्या बनेगा, वेक्टर ए का होल स्क्वायर ए डॉट ए, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी डॉट बी स्क्वायर बनेगा, और ए डॉट बी एंड बी डॉट ए, तो प्लस ट्वाइस ए डॉट बी डॉट ए सेम होते हैं, ट्वाइस ए डॉट बी, ये बनेगा। तो यहां पर हम जानते हैं ये यूनिट वेक्टर है, तो 1 स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये भी 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी। अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्यू टू दैट, इज इक्वल टू, अब ए प्लस बी का अगर हम ये देखें होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड लेंगे दोनों साइड, तो क्या बनेगा ये, अभी इसको चलो ऐसे रख लो, ए प्लस बी, ये भी सम कोई वेक्टर बनेगा और इसका होल स्क्वायर होगा, तो ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड। अब ये स्केलर है दोनों साइड, तो 2ab की वैल्यू हमें पता ही है हमारे पास, ab की वैल्यू, तो देन 1 + 1 2 प्लस 2 a डॉट b, मैग्नीट्यूड a 1 इंटू मैग्नीट्यूड b 1 इंटू कोस थीटा, ये हमने a डॉट b की वैल्यू यूज कर ली, यहां से डेफिनेशन से यूज हो गई यहाँ, और ये इफ कंडीशन के ये यूनिट वेक्टर है, इफ यूनिट वेक्टर, तो ये 1 स्क्वायर बनेगा, बिकॉज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज यूनिट वेक्टर, इज सम, इज ए यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड 1 होता है यूनिट वेक्टर का। इफ एनी वेक्टर is unit vector, then magnitude of this one and the magnitude of a plus b is equal to 1। तो मैग्नीट्यूड लिया हमने बोथ साइड, यहां भी मैग्नीट्यूड और यहां भी मैग्नीट्यूड, ओके। तो देन दिस विल बी इक्वल कंडीशन, तो ये 1 2 इधर आ गया, 1 - 2 -1 is equal to 2 into cos theta, this, then cos theta equal -1/2। अब नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो क्या लिख सकते हैं इसे, और cos कितना होता है, -1/2, और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, बट आप बताइए थीटा अगर 1/2 कितना होगा, cos थीटा 1/2, तो थीटा कितना होना चाहिए, 60 डिग्री, यानी π/3। तो देन वी कैन राइट cos ऑफ
इसको क्या लिख सकते हैं माइनस को, कोस ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाई 3 because cos pi minus pi by 3 means minus cos pi by 3 and minus cos pi by 3 means minus 1 upon 2 because cos pi by 3 is 1 upon 2 and minus 1 upon 2. So minus 1 upon 2 can be written this, okay, cos theta. तो cos से cos cancel, then theta equal कितना होना चाहिए 3 pi minus pi 2 pi upon 3. Understand, this is the solution of this question and part here D part is the answer. So correct option is equal to D. ठीक है, D means theta equal to pi by 3. Done. Okay. Next question. Yes, beta. Next question. MCQ. This is also very important question. 100% possibility to come in the board exam. Let A, B are any two vectors and theta is the angle between them. Then A dot B का magnitude is equal to magnitude of A cross B. ये तो स्केलर है ये मैग्नीट्यूड, बट इसका मैग्नीट्यूड जो है क्रॉस प्रोडक्ट का एक वेक्टर बनेगा और उसका मैग्नीट्यूड इसके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल है. तो बताइए थीटा क्या होगा. व्हेन थीटा इज इक्वल टू ए ऑप्शन 0, बी पाई बाई 4, सी पाई बाई 2, डी पाई. तो क्या करेंगे, दोनों की डेफिनेशन लिख लो आप. ए डॉट बी क्या होगा, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा. ये तो ए डॉट बी बन गया कोस थीटा एंड इसका मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एंगल थीटा. तो मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एनी वेक्टर है सेम होंगे एंड देन दिस डॉट एन यूनिट वेक्टर and into sin theta. This definition and again whole magnitude. अब इक्वल है दोनों ही. मैग्नीट्यूड इसका क्या बन गया, ए बी cos theta is equal to ए बी इंटू 1 इंटू एन यूनिट वेक्टर, वो भी यूनिट वेक्टर है साइन थीटा. एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 बिकॉज. ठीक है बेटा. अब देखिए क्या बन गए, ए बी कैंसिल, तो कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा. Then this implies sin theta upon cos theta tan theta. Sin theta upon cos theta tan theta is equal to 1. ये डिवाइड में चला गया, यहाँ 1 बच गया. Then theta is equal to pi by 4. आंसर. तो कौन सा ऑप्शन pi by 4? बी. तो दिस implies ऑप्शन बी इज करेक्ट. Option B pi by 4, theta is pi by 4 is correct. Done. Answer. Similarly, one more question. Yes beta, it is also most important question. MCQ. The value of I dot j cross k plus j
डॉट I क्रॉस K प्लस K डॉट I क्रॉस J इज A option 0, B option -1, C option 1, D option 3. Then solution of this, we know I dot J 90 degree angle, IJ unit vector we know x axis, y axis, z axis, तो थीटा 90 तो 0 we know. Similarly other, ठीक है, and I dot I we know same है, that is equal to 0 1, I dot I 1, okay, same, क्योंकि 0 डिग्री cos 0 1, बट क्रॉस प्रोडक्ट I क्रॉस J 90 डिग्री है, साइन 90 होता है 1, I क्रॉस J राइट हैंडेड रूल, एंटी क्लॉकवाइज I J K पॉजिटिव होता है, J क्रॉस K also 1 and K cross I also 1, but अगर उल्टा हो जाए J क्रॉस I -1, माइनस बाहर आ जाता है, ये उल्टा हो जाए K क्रॉस J -1, I क्रॉस K हो जाए I क्रॉस K also -1, because A cross B we can write minus of B cross A. This we know. So here I dot JK एंटी क्लॉकवाइज चल रहे JK, तो क्रॉस प्रोडक्ट JK 1 प्लस J डॉट I क्रॉस K, I J K एंड I क्रॉस J, एंड ये क्लॉकवाइज है तो -1 प्लस K डॉट I क्रॉस J 1. Understand? Now this I into 1 I plus J into minus 1 J, only simple, plus K. अब मैग्नीट्यूड इसका लो, वैल्यू पूछ रहे हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. So this is equal to, this is unit vector 1 minus 1 plus 1, then 1 minus plus then is equal to 1. So answer is 1. C option is correct option. So correct option C option. C option 1 answer. Clear? Like, share and subscribe the channel. Send the video to the maximum contact उनको भेजे जो कि +2 में स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम है 2 दिन बाद.
ओके, आज 6 है, 7, 8, 9 को पेपर है। ओके, तो उनको जरूर भेजें। जो बेचारे ट्यूशन नहीं गए हैं उनको पूरा सिलेबस देखने का टाइम मिल रहा होगा, अब वो कर सकते हैं। ऐसो को शेयर करें जिससे कि चैनल देख सकते हैं खोलकर, एवरी चैप्टर का एवरी क्वेश्चन दे कैन वॉच। लिंक मिलेगा उनको +2 का, सारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उन्हें गाइड करना है कि पहले उस लिंक को खोलने से पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल, तभी वो लिंक खुलेगा, अदरवाइज लिंक नहीं खुलेगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लिंक खुल जाएगा, पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ओके, और उनको कहें कि जिस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं सब आपको मिल जाएगा, सारी वीडियो मिल जाएंगी, एवरीथिंग। और ये इंपॉर्टेंट सेशन भी आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम 2026 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, 100% सक्सेस के लिए। ओके, उन्हें गाइड करना, ठीक है, एंड गाइड करो कि वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद राइट द कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।